Hello dear students, in this video lecture we will discuss uniqueness of the solution of heat conduction problem. इससे प्रीवियस हम लोग वेव इक्वेशन की यूनिकनेस डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर भी सिमिलर प्रोसेस है. सो लेट्स स्टार्ट और सेम उसी को हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं. We consider the problem is ut equals to k times of uxx over the interval 0xl with the initial condition ux0 is say fx, boundaries u0 comma t is 0, ul comma t is say 0. Okay, so start the proof. Same way we consider some function say vx comma t, which is the difference of your two solutions uxt minus u2x comma t. Then this vxt is the solution of say of the problem bt equals to k times of bxx, vx comma 0 is 0, v0 comma t is already 0, vl comma t is 0. Here we also consider the sum integral say gt. This is just a representation. You can represent this quantity by some another symbolization, which is 1 over 2 k times 0 to L v square of dx. Okay, इसको भी हम यहाँ पर एनर्जी इंटीग्रल के टाइप से ही कॉल करते हैं. ये टेक कर लिया. सो सेम वे नाउ फाइंड dj over dt, which is 1 over 2k integral 0 to L. This is 2v into v of t dx. 2 to 2 cancel, so this left is 1 over k integral 0 to L v times of vt of dx. Now integrate this one, which is 1 over k. We retained vt as it is and integrate this v. So this is the नो. अभी इस स्टेप पर इसको इंटीग्रेट मत करिए. मे बी ओके बी टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, विच इज के टाइम्स ऑफ बी एक्स एक्स. सो यू कैन सब्सटीट्यूट 1 over k in the value of vt h b x x k times k to k cancel and dx. Now you can integrate at this step 0 to L. This is v times of vxx dx. Okay, so retained v as it is, integrate vxx which is bx and integration limit is 0 to L minus integral 0 to L v differentiation of b with respect to x, so bx, and integration of this bx is bxx is bx dx. This value is 0. ऑलरेडी हम लोगों ने वेव के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है. सो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे. सो दिस वन इज 0 माइनस इंटीग्रल 0 टू L. दिस वन इज बी एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, बी एक्स स्क्वायर इज ए perfect square, so bx square is a positive quantity. It means j dash t is less than equals to 0. Now from initial data initial condition which is bx 0 is 0, so we substitute this value at t equals to 0
in our given equation. We call some equations, say this is the equation number 1. We called this system as the say equation number 2, and we called this one as equation number say 3. This one is 3. Okay, so इक्वेशन नंबर जो हमने जेटी कॉल किया उस जेटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जे0 हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 के इंटीग्रल 0 to L. यहाँ पर आ जाएगा Vx, 0 स्क्वायर dx एंड इसकी वैल्यू भाई हमारे पास अवेलेबल है विच इज 0. सो J0 इज 0. यहाँ से इसको कॉल कर लेते हैं सेम इक्वेशन नंबर 4. So now we interpret something from these two results. Okay, अब ये two results means this J0 and J'T. इन दोनों को आप समराइज कर लीजिए. J0 आपको 0 दिया हुआ है, मीन्स आपको 0 पे वैल्यू 0 दी है एंड आपने डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो रहा है. इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है. ठीक है, बट यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी आपके पास इन्वॉल्व हो रही है. सो डिक्रीजिंग नहीं कर सकते, नॉन इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर लेते हैं. सो इन दोनों कंडीशंस के थ्रू यहाँ पर मेंशन करते हैं फ्रॉम 3, 4 and 3. फ्रॉम 4 and 3 we can say that JT is non-increasing function. non-increasing फंक्शन. ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर आपके पास अंडरस्टूड होगा कि डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है या इक्वल टू 0 है. ठीक है, फॉर ऑल टाइम t एंड 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास 0 है. तो इस तरह से जो भी फंक्शंस आपके होते हैं आप एनालिसिस के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे. सो वहाँ से उस रिजल्ट को हमने यूज कर लिया. नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास हो गया. इट मीन्स that is non-increasing in the sense of mathematically we can say that JT is less than 0, say called equation number 5. But by the given definition जो हमने यहाँ पर कॉल किया है JT हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कॉल किया है हमने 0 to L v square x b square dx like that. ये परफेक्ट स्क्वायर है. सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास क्या आएगा, JT इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेम है इक्वेशन नंबर 6. फ्रॉम 5 and 6 सो JT मस्ट बी 0. भाई एक में आपके पास आ रहा है JT लेस देन 0 होना चाहिए, एक में आपके पास आ रहा है JT शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो इसमें क्या होगा फिर भाई, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि JT आपके पास कितना हो जाए 0 और एवरी पॉजिटिव टाइम t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हेंस JT आपके पास 0 आ गया. JT मीन्स इंटीग्रल 0 to L 1/2 के b square dx इज 0. It is 0. b is can never be 0. Oh sorry, it's not, b is never 0. This integral can never be 0 unless b is non-zero. So for this one v should be 0 and we already consider what is the b, u1x comma t minus u2x comma t. This is 0. It means u1x comma t equals to u2x comma t. यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि टू डिफरेंट सॉल्यूशंस आर सेम. दिस प्रूव द यूनिकनेस ऑफ हीट कंडक्शन प्रॉब्लम. तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है जो वेव इक्वेशन के अंदर किया था. तो सिमिलर उसी को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में एलैबोरेट करते हुए ड्राइव किया है.